بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بار پھر خوش آمدید. علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں سیگمنٹ میں. اگر تھوڑی سی میری آواز بڑھا سکیں اگر تو پلیز بڑھائیے گا. جناب مولانا کمیل میدوی صاحب, جناب قبلہ مفتی عامر صاحب, قبلہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب, جناب قبلہ مفتی سہیل احمدی صاحب, بہت شکریہ, بہت بہت نوازش. آپ لوگوں کے سوالات ہمیں آنا شروع ہو گئے ہیں سوشل میڈیا پہ, ٹویٹر پہ اور دیگر جگہوں پہ, اور انشاءاللہ ہم بہت جلد واٹس ایپ پر بھی آپ لوگوں کے سوالات لیں گے انشاءاللہ. جس طرح میں نے کہا کہ شان رمضان وداؤٹ اینی فلٹر ٹرانسمیشن ہے, سو جب بھی آپ کسی نئے گھر میں موو ہوتے ہیں تو آہستہ آہستہ ہم ذرا چیزیں سیٹل ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں نا, تو یہ ایسا ہی ہے. تو ہم ذرا 2-3 دن میں تھوڑا اور وہ کر کے اور پھر انشاءاللہ باقاعدہ بھی آپ لوگوں کے سوالات دیں گے. لیکن سوالات آپ کے بہت سارے آ گئے ہیں. بہت سارے سوالات عام طور پہ ابتدائی 2-3 روزوں میں اسی نوعیت کے ہوتے ہیں, سحری سے متعلق, افطاری سے متعلق, تو وہی سوالات میں کر لیتا ہوں انشاءاللہ. قبلہ مفتی احسن صاحب اگر یہ بتا سکیں کہ کئی اس طرح کے سوالات ہیں, میں اس کو جنرلائز کر دیتا ہوں ورنہ الگ الگ سچویشنز کے ایسے بہت سارے سوالات ہیں کہ بھائی ایک شخص بیمار ہے اور اس کو لگتا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا. تو جی قرآن میں بھی ہے کہ جناب مریض پہ تو ساقط ہے. اب یہ کیسے ڈٹرمن ہوگا کہ یہ جو مجھے لگ رہا ہے کہ میں بیمار ہوں یہ واقعی اتنا والا بیمار ہے کہ مجھ پہ سے روزہ ساقط ہو گیا ہے, یا یہ ایک ہوتا ہے نا بھائی سر میں درد ہے, اب ہے روزہ رکھنے میں تکلیف ہوگی لیکن ایسا نہیں کہ اللہ نہ کرے نہیں رکھوں گا تو کچھ ہو ہی جائے گا. تو اب یہ پتہ کیسے چلے گا کہ کون سا والا بیمار روزہ رکھ سکتا ہے, کون سا والا بیمار روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دیکھیں جہاں تک معمولی تکلیف کی بات ہے, معمولی سے سر درد ہونا, وہ تو ویسے ہی جب بندہ روزہ رکھتا ہے روٹین سے ہٹ کے رکھے گا تو سر میں درد ہوتا ہی ہے. جیسے کل پہلا روزہ تھا تو ہمارے بھی سر میں درد ہو رہا تھا. تو اب روٹین سے ہٹ کے بندہ رکھتا ہے تو یہ معمولی سا جو سر درد ہے, معمولی سی تکلیف ہے, یہ عذر نہیں ہے. عذر وہی ہے کہ جب زیادہ تکلیف ہو اور اس کا صحیح اندیشہ ہو, بندے کا اپنا تجربہ ہو کہ میں روزہ رکھتا ہوں یا زیادہ بھوکا پیاسا رہتا ہوں تو مجھے شدید قسم کا بخار ہو جاتا ہے, شدید تکلیف ہو جاتی ہے, یا مجھے کوئی شدید مرض ہو جاتا ہے, یا اس کا ہونے کا صحیح اندیشہ ہے. ظن غالب ہو, پرانا تجربہ ہو, یا صحیح اندیشہ ہو. صحیح اندیشہ مانا ظن غالب ہو, شک شبہ نہیں, یا پھر کسی ماہر حاذق طبیب نے, ایسا طبیب, ایسا ڈاکٹر کہ جو دیانتدار ہو. ایسے ڈاکٹر نہیں کہ جیسے بعض کا ڈاکٹر بہت زیادہ جو ہے اس معاملے میں کانشیس نہیں ہوتے عبادات کے معاملے میں, تو چھوٹی سی بات بھی کہہ دیتے ہیں معمولی سے سر درد ہو اللہ معاف کرنے والا خیر روزہ نہیں رکھو. ایسے نہیں, یعنی ایسے ڈاکٹر ہوں کہ اپنی فیلڈ کے بھی ماہر ہوں اور تھوڑا سا خوف خدا رکھنے والے بھی ہوں, اس کو سمجھتے ہوں کانشیس اس معاملے میں, عبادت کے معاملے میں. تو وہ اگر یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ایسی تکلیف ہے کہ یہ اس تکلیف میں روزہ آپ کو ضرر کرے گا, نقصان پہنچائے گا شدید قسم کا, تو ایسی صورت میں رخصت ہے. لیکن جو آپ نے لفظ استعمال کیا نا روزہ ساکت ہونے کا, ساکت نہیں ہوتا, مؤخر ہوتا ہے, قضا ہوگی, مؤخر ہوگا. یعنی ساکت کا تو مطلب یہ ہے کہ روزہ سرے سے ہی معاف, اب رکھنا ہی نہیں ہے دوبارہ, صحیح اس کا فدیہ وغیرہ دے دیں. لیکن یہاں ساکت نہیں ہے, صرف یہ مؤخر ہوتا ہے, پینڈنگ ہوتا ہے, یعنی اس کی آپ نے بعد میں قضا کرنی ہوتی ہے. ان لوگوں کے جس آیت کا لوگ حوالہ دے رہے ہوتے ہیں کہ مریض, اس میں بھی یہی ہے کہ آخر کے ایام میں پورے بعد کے ایام میں پورے کرنے ہیں, گنتی پوری کرنی ہے. تم من ایام اخر, وہاں تصریح موجود ہے. اور وہاں بھی آگے یہ وضاحت بھی ہے کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ, اگر تم روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی جو مسافر اور مریض ہے جس کو رخصت دی جا رہی ہے اس کے لیے بھی آگے قرآن میں بیان یہی ہو رہا ہے کہ رخصت تو دے دی ہے اسے کہ مؤخر کر دے, پینڈنگ کر دے, لیکن اگر وہ روزہ رکھنا چاہے اور روزہ ایزیلی کر سکتا ہو تو روزہ رکھ لے, یہ اس کے لیے بہتر ہے. ٹھیک ہے, اس پہ فقہی حوالے سے آپ بھی رائے دے دیجیے گا. قبلہ مریض کا تو وہی مسئلہ ہے جو مفتی صاحب نے بیان کیا تقریباً اسی طریقے سے. اس میں جو معیار ہے وہ خود مکلف ہے. اچھا, یعنی وہ ڈاکٹر کے کہنے کے بعد خود کسی یقین پر پہنچ جائے تو پھر الٹیمیٹلی معیار تو خود اس کا اپنا یقین ہی ہے کہ وہ بینی و بین اللہ کیا سمجھتا ہے کہ میرا روزہ رکھنا میرے لیے شدید تکلیف کا باعث ہے, یا اس وقت شدید تکلیف نہ صحیح لیکن اس وقت کا روزہ رکھنا بعد کے لیے اس مرض کو بڑھا سکتا ہے, ایسا کہ جو انبیریبل کنسیکوینسز ہو سکتے ہیں جس کے. تو ایسی صورت میں اس پر روزہ معاف ہے اس وقت اور بعد میں اس کی قضا کر لے. ہاں وہ مریض کے جس کا مرض ایسا ہے کہ جو ہمیشہ ہی رہنے والا ہے, مثلا شدت پیاس میں کچھ لوگ مبتلا ہوتے ہیں, ایسی شدت پیاس کہ جو ناقابل برداشت ہوتی ہے, تو ایسی صورت میں پھر ان کے لیے روزہ ساقط ہو جاتا ہے چونکہ ان کے لیے بعد میں شفا کا امکان عام حالات میں نہیں ہے. تو پھر وہ فدیہ اور اس کے باقی معاملات آ جاتے ہیں, اپنی ڈیٹیلز ہیں, پھر اپنی ڈیٹیلز آ جاتی ہیں. ورنہ بنیادی طور پر تو اصول وہی ہے کہ جو مفتی صاحب نے بیان کیا. ٹھیک ہے, اور دوسری ایک کیٹیگری جو آتی ہے مسافروں کی, تو پہلے آپ بتا دیجیے فقہ جعفریہ کے عنوان سے, پھر قبلہ آپ بتا دیجیے گا کہ کون سا مسافر ہے, یعنی کہ بس کوئی بھی مسافر ہو اس پہ اس نے روزہ نہیں رکھنا. ان دس کیس مسافر کی ڈیفینیشن کیا ہے, کون مسافر سمجھا جائے گا؟ جی,
वैसे तो हम भी मुसाफिर हैं, अपने घर से आपके आप पास आए ऑस्ट्रेलिया से आए हैं। नहीं, अपने घर से अभी यहाँ घर कराची, से आए हैं सर, वो भी तो सफर ही है ना, सही है, एक तरह से सफर करके हैं आपकी खिदमत सही में। है, सही। तो वो मुसाफिर के जो अपने शहर को छोड़कर कहीं और जा रहा हो, कुछ बड़े शहर होते हैं तो वहाँ पर भी एक जगह से दूसरी जगह जाना वो फुक़हा के दरमियान एक बहस है, लेकिन बहरहाल उसका नतीजा ये है कि वो मुसाफिर काउंट नहीं होगा। मिसाल के तौर पर कराची का हो सकता है एक इलाका ऐसा है कि जहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाने में 1.5 घंटा लगेगा, हाँ सही है, लेकिन वो एक ही शहर चूंकि काउंट हो रहा है, लिहाजा वो अपने शहर ही में है। लेकिन जब वो शहर से बाहर निकलेंगे और वो हद तरख़्ख़ुस को क्रॉस कर जाएं, मसलन उसकी जो मिक़दार है फ़िक़्ह जाफ़रिया के मुताबिक वो है कि आना और जाना मिलाकर 44 किलोमीटर बन जाता हो, यानी अगर वो 22 किलोमीटर बाहर निकल चुके हैं अपने शहर की हुदूद बॉर्डर से ऑनवर्ड्स 22 किलोमीटर, तो जब वापस आएंगे तो मजीद 22 किलोमीटर आएंगे, तो मिलाकर ये 44 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये एक तो पहली शर्त है कि ये मुसाफिर काउंट होगा शरई एतबार से, इसको रोजा नहीं रखना, इसको रोज़ा नहीं रखना, लेकिन नहीं रखना या नहीं रख सकता, यानी चाहे भी तो नहीं, अलाउड ही नहीं है इसको। हाँ, अगर उस पर बाकी तमाम शराइत भी पूरी हो चुकी हैं हाँ, तो मुसाफिर के लिए वो रोज़ा रख ही नहीं सकता सही। जाफरी के मुताबिक, बाद में उसको उसकी क़ज़ा करनी है। हाँ, लेकिन एक बात यह है कि जहाँ वो पहुँचा है वहाँ पर अगर उसका 10 दिन का क़याम है, हाँ हाँ, तो ऐसी सूरत में फिर वो वहाँ मुसाफिर नहीं कहलाएगा, वो अच्छा, हाँ, वो मुकीम ही कहलाएगा। तो उसने वहाँ रोज़ा रखना है जैसे कि वो अपने घर में रोज़ा रखता। ओके। तो अब इसकी एक तफसील ये है कि जिस दिन वो सफ़र कर रहा है तो उस दिन के रोज़े का क्या होगा, चूँकि उस दिन तो वो सफ़र कर रहा है ना, वो तो उस दिन का रोज़ा उसने रखना है या नहीं रखना, चूँकि हो सकता है कि वो जहाँ पर पहुँचेगा उसको एक दिन लगेगा वहाँ पहुँचने में। हाँ हाँ हाँ, तो अगर वो ज़ोहर के बाद सफ़र इख्तियार करता है ठीक है, तो ऐसी सूरत में उस दिन का रोज़ा उसे रखना है। ओके, वो ये नहीं कर सकता कि जब मैं अपने शहर से बाहर निकलूंगा तो मैं अपने रोज़े को ख़त्म कर लूँगा। वो जब इफ्तार का वक्त आएगा, जहाँ कहीं भी वो है उसे इफ्तार करना है तो रोज़ा उसका माना जाएगा। लेकिन अगर वो ज़ोहर से पहले सफ़र इख्तियार कर रहा है तो ऐसी सूरत में उस दिन का रोज़ा नहीं होगा। लेकिन इसमें एक ज़रा सी बारीकी है कि जब तक कि वो अपना शहर ना छोड़ दे और हद तरख़्ख़ुस क्रॉस ना कर जाए, उस वक्त तक वो खा पी नहीं सकता। यानी अच्छा अच्छा, फ़र्ज़ कीजिए कि वो सुबह 9 बजे सफ़र कर रहा है, फ़्लाइट है उसकी 9 बजे, किसी की लाहौर फ़्लाइट है कराची से, तो ऐसे में उस दिन का रोज़ा नहीं हो सकेगा उसका। अगर वो लाहौर पहुँच कर 2 दिन में वापस आ जाने वाला है तो फिर तो रोज़ा तो नहीं हो सकेगा। लेकिन फिर भी क्योंकि 9 बजे सुबह फ़्लाइट है ना ठीक, उसकी, लेकिन वो 9 बजे तक खा पी नहीं सकता फ़िलहाल, अच्छा ठीक, जब तक कि प्लेन उसका परवाज़ ना कर जाए। फिर वो मुसाफिर बन गया, अब उसका रोज़ा ख़त्म हो गया, बाद में उसको उस रोज़े की क़ज़ा करनी है, फिर वो खाना पीना कर सकता है। इसमें कोई राय मुख्तलिफ है? अच्छा, अगर थोड़ी सी उलमा की भी राय, अगर आवाज़ थोड़ी सी, मैं कह रहा हूँ राय नहीं, आवाज़ ज़रा सी अगर बढ़ा सके तो। जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, राय भी बढ़ा लेते राय हैं। तो आप खुद अपने हिसाब से कम बढ़ा लें मेरा ख्याल है। अब तक इस हवाले से तो आज़ादी ज़्यादा राय है अल्हम्दुलिल्लाह, तो करें मेरा ख्याल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबि व बारिक वसल्लम। कुरान करीम में जो फरमाया ना कि औ अला सफ़रिन, कि कोई सफ़र पर हो, तो ये तो अल्लामा साहब ने इसमें हम भी तायीद करते हैं कि कोई मलीर लांडी अगर जाए तो वो सफ़र नहीं कहलाता। सही है कि चलो भाई मैं मलीर जा रहा हूँ तो रोज़ा आज का नहीं रखूँगा, ऐसा नहीं है। अच्छा, हमारे यहाँ फ़िक़्ह हनफी में जो है 57 यानी 57 माइल्स जो कि 92 किलोमीटर्स बनते हैं, 57.5 माइल्स 92 किलोमीटर्स। सही, अगर इतना सफ़र करना है तो ये सफ़र शरई कहलाता है। जैसे यहाँ 44 किलोमीटर, जी हाँ, वो यहाँ है कितना किलोमीटर तकरीबन? 57.5 माइल्स 92 किलोमीटर्स ये बनता है। अच्छा, आना जाना मिला के नहीं, सिर्फ वन जाना, वन वे, जी हाँ, वन वे, और यहाँ वन वे 22 किलोमीटर, ऐसे ही है। ठीक जी, सही, ये फ़र्क है। ठीक है, ये राय हो गई। इस सूरत में ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये देखा जाएगा कि अगर उसका सफ़र इस तरह है कि सुबह सादिक उसकी अपने घर पर आ रही है, अपने शहर में आ रही है, तो फिर रुख्सत नहीं है, क्योंकि सुबह सादिक का वक्त वो अपने मकाम पर पा रहा है तो वो रोज़ा रखेगा, ऑप्शन नहीं है। लेकिन रात में सफ़र किया और सुबह सादिक उसकी दौरान सफ़र आ गई तो इस सूरत में उसको ऑप्शन मौजूद है कि ना रखे तो कोई गुनाह उस पर नहीं है, लेकिन बाद में उसको क़ज़ा करनी होगी। ठीक हो गया। और वो 10 दिन वाला मामला? अच्छा, अब एक मसला और भी है कि 57.5 माइल्स 92 किलोमीटर्स आपने सफ़र किया। सही है। जैसे ही शहर की हुदूद से बाहर निकले, मज़ाफ़ात शुरू हुए, तो वहाँ से गोया कि नमाज कसर भी आपकी शुरू हो जाती है और सारे अहकामात लागू हो जाते हैं। ठीक है। अब जब आप मंजिल पर पहुँचे, जहाँ पर आपको पहुँचना है, वहाँ पहुँच गए, अब देखा जाएगा कि आपकी वहाँ ठहरने की नीयत 15 दिन से कम की है या नहीं।
15 दिन से कम की है तो वहाँ पहुँच कर भी आप मुसाफिर रहेंगे। अगर 15 दिन या उससे ज़्यादा की नीयत है तो वहाँ पहुँच कर फिर आप मुसाफिर नहीं रहेंगे, फिर आप मुकीम हो जाएंगे। जो यहाँ 10 दिन है ना, बिल्कुल। यानी अगर लोग उम्रा वगैरह पे जाते हैं तो अगर रमजान में 15 दिन से ज्यादा के लिए जा रहे हैं तो वहाँ रोजे रखेंगे। जी जी जी। 12 दिन और 15 दिन भी एक ही जगह पे, यानी अगर कोई 15 दिन के लिए गया है, 16 दिन के लिए गया है, लेकिन 8 दिन मक्का 8 दिन मदीना है, तो अब ये तो रोजे फिर रखें वो मुसाफिर ही रहेगा, क्योंकि एक जगह पे 15 दिन से कम रह रहा है। जी हाँ, रुखसत मौजूद है, लेकिन रख ले तो ज्यादा बेहतर है। तो ये राय का फर्क आ गया। ठीक, बिल्कुल ठीक, मुनासिब। अच्छा क़िबला मुफ्ती आमिर साहब, अभी ये कुछ सवालात की तकरार भी होगी इसमें, लेकिन आप लोगों को भी अंदाज़ा होगा, हमें भी ज़रा सवालात से आइडिया होता है कि वो बहरहाल वो रमज़ान आता है तो वो कुछ सवालात लोगों के ज़हनों में ज़रा धुंधले हो जाते हैं, तो वो दोबारा पूछ रहे होते हैं। तो मैं ज़रा आपसे 2-3 इस तरह के सवालात कर लेता हूँ। एक ये है सवाल अज़ान के हवाले से कि जब रोज़ा इख्तियार करना है तो पैमाना वो टाइम है जो कैलेंडर पे आता है कि भाई इतने बजे नमाज, या पैमाना अज़ान है कि भाई अज़ान हो रही है तो अब रोज़ा इख्तियार कर लेना है? मुझसे आप इसका जवाब तो दीजिएगा। इस सवाल का जवाब तो आपको भी रटा हुआ होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये अभी भी कोई एक फतवा रिसेंटली आया था, बाज़ औक़ात सवालात का तकरार जो है ना नए व्यूअर्स के लिए फ़ायदेमंद साबित हो जाता है। नंबर 2 ये कि कोई इस हवाले से गलत फहमी क्रिएट होती है तो वो दोबारा दूर हो जाती है। क्लैरिफाई होता है, सही। अभी रिसेंटली एक नया फतवा आया जिसका जिक्र अभी मुझे मुफ्ती साहब ने ही किया था कि अज़ान के वक्त एक हदीस है तो उसके मुताबिक आप खाना खा सकते हो, हालांकि वो हदीस फजर की अज़ान की नहीं है। और आपका जो सवाल था वो यही था कि रोज़े का ताल्लुक़ टाइम से है, टाइम हो गया अज़ान नहीं हुई तब भी रोज़ा शुरू हो गया, अज़ान हो गई तब भी रोज़ा शुरू हो गया। और अगर टाइम नहीं हुआ और अज़ान हो गई तब भी अभी आप सहरी कर सकते चल रहा है आपका, क्योंकि टाइम बाकी है। तो अज़ान से नहीं है ताल्लुक़। अज़ान असल में फ़जर के लिए दी जाती है, क्योंकि फ़जर का वक्त हो गया है तो अज़ान दे दी जाती है, लोग नमाज़ पढ़ें। अज़ान इसलिए नहीं दी जाती कि लोग इस रोज़ा बांधें। सिर्फ इतना होता है कि माह रमज़ान के अंदर जो है वो अज़ान पहले टाइम में दी जाती है, जैसे ही वक्त शुरू होता है फ़जर का और ख़त्म होता है रोज़े का, सहरी का, तो अज़ान दे दी जाती है ताकि लोग नमाज़ पढ़ के फ्री हो जाएं। सही है। तो अब ये जहन में आता है कि अज़ान का ताल्लुक़ हो गया रोज़े के टाइम वो नमाज से है। हाँ सही। तो जब अज़ान होती है ना वक्त ख़त्म हो चुका होता है। और मुफ्ती साहब जो अज़ान का वक्त होता है अज़ान फ़जर का, यानी नमाज, असल में वही इख्तियार रोज़ा का वक्त होता है। यानी कि मिसाल में 5 बजे है आज फ़जर कराची में फॉर एग्जांपल, तो असल में कराची वालों का रोज़ा 5 बजे ही शुरू हो रहा है। ये जो 4:50 या 4:55 लिखा हो तो ये एहतियात के 5 मिनट है या नहीं, असल में अज़ान से 5-10 मिनट पहले ही रोज़ा इख्तियार करना होता है, शुरू हो जाता है रोज़ा। अच्छा, एक तो बात ये है कि जहाँ सहरी का टाइम ख़त्म होता है ना शरन, वहाँ फजर का टाइम शुरू होता है। इनके दरमियान कोई हद फासिल या डिस्टेंस नहीं है। ठीक है। जहाँ सहरी ख़त्म हुई वहाँ फजर शुरू हुई। अब जो आप जिक्र कर रहे हैं ना, बाज़ लोग एहतियातन 2 मिनट पहले सहरी बंद करवाते हैं, तो वहाँ फजर का टाइम शुरू नहीं हुआ। सही, सहरी सेफ साइड पे उन्होंने ज़रा सेफ साइड पे कि यार कहीं ऐसा ना हो कि हम टाइम में दाखिल हो जाएं और फिर भी खाना खा लें। और तो आपका भी मशवरा यही है कि भाई टाइम तो अजान वाला ही है, लेकिन बेहतर है कि 2-3 मिनट पहले ही, ताकि इम्कान ही ना रहे कि अरे अजान हो गई, लेट हो गए, घड़ी सही नहीं। सही कहा कि अजान से पहले रोज़ा बंद कर दिया जाए, 2-3 मिनट पहले अजान का ना इंतज़ार किया जाए। ठीक है। एक और बता दें, और यकीन जाने सवालात आते हैं पूछना कि भाई कि जी वो सहरी में लेट उठे हैं और अब बस अब यानी कि लुक़मा या जो भी पानी का गिलास वो लिया हुआ है और मालूम हुआ कि अब तो रोज़ा इख्तियार करने का वक्त हो गया, अजान हो गई है, तो बस अब क्या करें? यानी कि तो बस उगल दें और रोज़ा शुरू हो जाएगा या क्या क्या मामला होगा? मतलब अजान का टाइम होने वाला है, अनाउंसमेंट हो गई है कि इतने सेकंड बाकी हैं, तो बस जो पानी पिया उस पर इक्तिफ़ा कर ले और इंशाअल्लाह वो पानी उसके लिए ताकत और क़ुव्वत का बाइस बनेगा। कभी कभी ऐसा रोज़ा भी रख लें जिससे रोज़े का पता चले, यानी भूख का पता चले, कभी कभी ऐसा भी रख लें। और ज़्यादातर ये होता है कि जो नौजवान होते हैं उनके लिए तो मतलब इतना प्रॉब्लम नहीं होती है। सही है। कमज़ोर, बीमार, बूढ़े, ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं तो फिर वो थोड़ा सा डरते हैं कि कहीं थकावट ना हो जाए। हाँ सही है। ये फ़िक़्ह जाफ़रिया में भी रोज़ा इख्तियार करने के वक्त से मुतालिक यही मामला है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही मामला है। बाज़ लोगों को ये गलत फहमी होती है या दिल को तसल्ली देते हैं कि जब तक अजान ख़त्म ना हो जाए उस वक्त तक जल्दी जल्दी सहरी ख़त्म कर लो। यानी अल्लाह अकबर, अब अजान शुरू हुई है तो अब अजान ख़त्म होगी तो उससे पहले पहले तक जल्दी जल्दी खा पी के ख़त्म कर लो। वो अजान के बाद भी खाने का जुनून
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। देखिए इतनी बार रिपीट हुआ ये मसला, लेकिन अल्लामा साहब बता रहे हैं कि लोगों की आदत यही है कि यार अजान हो रही है, जल्दी जल्दी पी लो पानी, जल्दी जल्दी अजान खत्म हो रहा है, हालांकि तब तक उनका रोजा खत्म हो चुका होता है कि अब वो रोजा ही नहीं रहा होता। जी, रोजा ही तमाम हो चुका होता है। 5-10 मिनट पहले जो बंद करने का एक मकसद है वो ये भी होता है कि बाद लोग फिर ब्रश कर लेते हैं ताकि कोई मुंह में रहना गया हो कि बाद में वो कोई जर्रा ना चला जाए, मेडिसिन कभी किसी को खानी होती है ताकि वो सेफ साइड पे रहें। तो बहरहाल बात तो वही है कि जैसे ही सहरी ख़त्म होगी उसी लम्हे ही अजान यानी फजर का वक्त हो जाएगा। वो सही है। इसी से मुतालिक मेरा सवाल था, तो आप बता दीजिए, फिर मैं एक एक कमेंट यहाँ से भी सबसे ले लेता हूँ। ये टूथपेस्ट करना, मिसवाक करना या माउथ वॉश यूज़ करना रोज़े के आलम में, ये ठीक है? ये तमाम जायज़ हैं, सिर्फ एक इस कंडीशन के साथ कि कोई एक कतरा भी हलक तक ना जाने पाए, निगल ना ले इंसान, उसका केयर करे। बाकी ये रोज़े के आलम में भी जायज़। इस नियत के साथ किसी ने किया है कि बिल्कुल नहीं जाएगा, उसे अंदाज़ा हो जाता है ना इंसान को, और चला गया गलती। बाई चांस अगर ऐसा मिस्टेक हो गई तो हरज नहीं है, लेकिन ये कि उसको मेक श्योर ये करना चाहिए। इस खातिर ये कि उलमा ने और फुकाहा ने इसको रिकमेंड किया हुआ है कि फिर आप एहतियात कर लें, ना करें तो बेहतर है, कर लें या बाद में इफ्तार के बाद कर लें। लेकिन अगर फिर भी कोई कर लेता है, बस कि बाद लोग ऑफिस जा रहे होते हैं, कि उनके मुंह से एक स्मेल आ रही है, चाह रहे हैं कि भाई थोड़ा सा फ्रेश होकर चले जाएं, तो जायज़ है उनके लिए। ये जायज़ है क़िबला या राय मुख्तलिफ है? मसला तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसा अल्लामा साहब ने बयान किया। अच्छा, थोड़ा सा ये है कि हमारे यहाँ मिसवाक तो बिल्कुल जायज़ है, और ये जो टूथपेस्ट है या माउथ वॉश है, जब अंदेशा हो तो ऐसी सूरत में मकरूह है, यकीन है फिर तो जायज़ नहीं। लेकिन अगर जो है अंदेशा है कि चला जाएगा तो ऐसी सूरत में बिला ज़रूरत करना मकरूह है। बिल्कुल ठीक है। वैसे वही मसला वही है जो उन्होंने बयान किया। सही है। कभी कोई ऐसे उसमें मुब्तला है कि दांत से खून वगैरह आ रहा है वो तो, और अगर वो ज़ाहिर कोई भी चाहेगा तो नहीं, अब गलती से वो चला गया, निकल लिया है, तो रोज़े के टूटने का सबब बनेगा? गलती से हो गया। आसान अल्फाज में मैं यूँ बयान करूँ कि अगर बाकायदा खून का जायका महसूस हुआ और हलक के अंदर चला गया तो रोज़ा ख़त्म हो जाएगा, गुनहगार नहीं होगा, बाद में कज़ा करनी होगी। लेकिन अगर थूक और खून मिले हुए हैं, खून का जायका नहीं आया, महसूस भी नहीं हुआ, ऐसा लगा कि थूक ही अंदर निकला है, तो इस सूरत में रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया। ये रोज़े की प्यास बुझाने की नीयत से, अब पत्नी साइकोलॉजिकल है जो भी, क्या बड़ी बड़ी प्यास लग रही है। वो हम जो बहुत छोटे हुआ करते थे, हम खारादर की गलियों में क्रिकेट खेलते थे, तो क्या यार अब 4 बज गए, बहुत क्रिकेट खेल लिए, अब प्यास लग रही है तो पानी तो नहीं पी सकते, तो पता नहीं दिल के बहलाने होगा क्या, चलो कुल्ली कर लो, थोड़ी प्यास कम हो जाएगी। सो ये अमल जायज़ है या ये रोज़े ये सबने किया है? अच्छा, सबने किया ये मैं घबराऊँ ना मैं, ठीक है, ओके। तो ये रोज़ा तोड़ देता है ये अमल, या यानी जाहिर है अगर पानी अंदर चला गया वो तो बात ख़त्म हो गई, लेकिन पानी नहीं गया, ऐसे ही दिल की तसल्ली कर 4-5 दफ़ा कुल्ली कर ली, क्या ज़रा तसल्ली हो जाएगी, तो ठीक है। मुफ्ती साहब कह रहे हैं सबने किया, इसका मतलब जायज़ है। असल मसला मतलब मैं स्कूल लाइफ की बात कर रहा हूँ। वो बिल्कुल स्कूल लाइफ में सबने किया है और जायज़ ही है। असल में कराहत होती है ज़्यादा से ज़्यादा अंदेशे की वजह से। हाँ, कराहत होती है, वरना आप कुल्ली की नीयत से कर लें, वज़ू की नीयत से कर लें, तो आपको वज़ू का सवाब भी मिलेगा, आपका काम भी हो जाएगा। हाँ ठीक। अच्छा, किसी भी वजह से इंसान को रोज़ा ख़त्म होने के बाद पता लगा, 1 दिन बाद या 1 साल बाद, कि जो फला रोज़ा था, अच्छा उसमें मुझसे ये हुआ था, मिसाल के तौर पर कोई ट्रांसमिशन देख रहा है फॉर एग्जांपल, और उसको पता लगा कि अच्छा ये तो मुफ्ती साहब ने बताया कि अगर ऐसे हो जाए तो रोज़ा टूट जाता है, मेरे साथ तो ये हुआ था, जान के नहीं किया था मैंने, नहीं। सो कोई भी ऐसी सूरत हाल जिसमें इंसान को पता चले कि मेरा साबका रोज़ा गलत था, तो अब उसके ऊपर क्या फ़र्ज है? चूँकि उसने जान के नहीं किया था तो बात ख़त्म हो गई, या उसको उसकी क़ज़ा रखनी पड़ेगी अब जब पता लग गया तो क्या होगा? हाँ देखिए, उसको अगर पता चला कि वो मेरे फ़लाँ अमल से जो है वो अब पता चल रहा है कि रोज़ा टूट गया था, तो वो उसकी कज़ा करेगा, रखनी पड़ेगी। बाज़ों का डाउट होता है, पता नहीं हो गया या टूट गया, तो एहतियातन कज़ा कर ले। जहाँ यकीन है तो फिर कज़ा करना उसके ऊपर फ़र्ज़ था, जहाँ यकीन नहीं है, डाउट है, तो फिर कज़ा करना उसके लिए जो है वो जायज़ है, मुनासिब। ये इस पे जी शक है तो शक की परवाह ना करें, यानी अगर किसी साबका रोज़े के बारे में पता नहीं क्या था, बल्कि किसी भी अमल के बारे में, ये फ़िक़्ह जाफ़रिया में मुतलक़न ये बात है, वैसे ही यानी शैतान को दाखिल ना होने दें वसवसे की सूरत में, इसलिए कि जो कसीर शक बन जाता है तो फिर वो दूसरी तरफ से गिर जाता है इमारत के, यानी वो इतना ज़्यादा शक में मुब्तला हो जाता है कि उसको हर इबादत में शक होने लगता है। ये भी गलत बात है। बाज़ लोग वज़ू करते रहते हैं 10-10 मिनट तक, उनको यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारा वज़ू ठीक हो चुका है, या मसलन गुस्ल वाजिब हो चुका है तो आधे घंटे तक गुस्ल कर रहे हैं कि या वो नमाज 5-5 मरतबा पढ़ते हैं कि पता नहीं 3 पढ़ी 4 पढ़ी। ये भी खुद शैतान का एक वसवसा है
قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. تو یہ جو شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے احساس ہے تو بلا وجہ شک کو نہ آنے دیں. لیکن اگر کسی کو یقین ہو گیا مسئلہ سننے کی وجہ سے کہ میرا فلاں روزہ تو باطل ہو چکا تھا تو اس پہ کفارہ نہیں, جو اس کو معلوم ہی نہیں تھا, فقط قضا کر لینا کافی ہے. اور یہ ٹھیک ہے کہ جو کثیر الشک و نماز کے حوالے سے سوال پوچھا میں, وہ تو اب اس میں اب وہ اس قید سے آزاد ہے فقہ جعفریہ کے مطابق کہ 2 رکعت ہوئی 3 ہوئی تو بس کوئی بھی ایسی سوچ یا عمل جو اس کو اس کیفیت سے نکالے وہ اس پہ یقین کرو بس آگے بڑھے تاکہ وہ اس کیفیت سے نکل جائے, وہ ایک عام آدمی کی سطح پر آ جائے, پھر وہ سارے قواعد اس پہ لاگو ہوں گے کہ 2 رکعت کا 3 کا شک ہوا ہے 3 کا 4, ایسا ہی ہے. کثیر الشک پہ ضروری ہے کہ وہ اپنے شک کی پرواہ نہ کرے, ضروری ہے کہ پرواہ نہ کرے, ضروری ہے کہ پھر 2 یا 3 میں شک ہوا ہے تو کیا سمجھے, وہ 3 سمجھے, 3 سمجھے. اچھا جی, اور اس کو نماز کو آگے بڑھائے, اس لیے کہ اگر وہ کثیر الشک ہوتے ہوئے بار بار اپنے شک کو داخل ہونے دے گا اپنے وجود میں اور اپنے دماغ میں تو اس کا شک بڑھتا جائے گا, اور یہی کثیر الشک جب بڑھ جاتا ہے تو وسوسے کی حد میں پہنچتا ہے. تو کثیر الشک اپنے شک کی ہرگز پرواہ نہ کرے. اس میں مفتی صاحب یہی رائے ہے اس میں یا مختلف؟ ہمارے یہاں پہ بھی یہی ہے, بس صرف اتنا کہ 2 یا 3 میں ڈاؤٹ ہے تو ظن غالب کو ترجیح دی جائے گی کہ آپ کا ظن غالب کیا ہے. اور یہ معاملہ ہمارے یہاں ایسے ہی ہے, ان الظن لا یغنی عن الحق, یہ جو گمان ہے شک ہے یہ کبھی یقین کو زائل نہیں کرتا ہے. لیکن بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ کبھی کبھی کا معاملہ ہوتا ہے تو وہاں پہ پھر احتیاط کے طور پہ اس عمل کو دہرانے کا حکم دیا جاتا ہے, لیکن کثیر الشک ہو روٹین وائز ہو تو پھر اگنور کیا جائے. زبردست, بہت بہت نوازش, بہت شکریہ. انشاءاللہ سارے کے میں بات بھی ہوگی, وقت کم ہے لیکن میں پھر بھی یہ جاتے ہوئے بات ضرور کہوں گا کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے میری بات کی, لیکن مجھے میری ایک خواہش ہے کہ کاش سارے معاشرے میں اس طرز کی ڈیبیٹ پروان چڑھے. یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ آپ کو غالباً محسوس بھی نہیں ہوا ہوگا, میں کہہ رہا ہوں تو شاید آپ کو محسوس ہوا, ورنہ اتنے غیر محسوسانہ انداز میں کہ بھائی یہاں یہ رائے ہے یہاں یہ رائے ہے, اس میں مسئلہ کیا ہے, اس میں تو کاش ہر حوالے سے, چاہے وہ کوئی سیاسی رائے ہو, فرقے کے حوالے سے, مسلک کے حوالے سے, کسی بھی حوالے سے, کاش یہی کلچر پروان چڑھے کہ صاحب میری یہ رائے اور ہماری یہ رائے, اس میں کیا مسئلہ ہے. لیکن اس کو اختلاف اور ایک لڑائی جھگڑے کی کیفیت نہ ہو, اللہ کرے کہ کاش ایسا کلچر پروان چڑھے. علماء کرام یہاں پہ اپنے حصے کی شمع باتوں کے ذریعے نہیں بیانات کے عملاً جلا رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر, اور انشاءاللہ یہی سلسلہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہاں جاری رہے گا. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جزاک اللہ.